This is my small initiative to make people learn with me. Sometimes people are not available to sit thoroughly for study, especially for UPSC. So these videos will make you understand subjects and the basic. So I'm starting this initiative with the standard books, and then we can see how it goes, and we'll try to cover as much as possible 360 degree of the topic of the relevant things which are important for the UPSC preparation. So we will go accordingly. This is the first lecture for the geography section. We are starting with the book Fundamentals of Physical Geography. It is a class 11's book. We are starting this with the NCERT session, right? So we are skipping this first lecture, but we will move forward with the second unit, that is the Earth. So this chapter is all about the different theories and the evolution of understanding, how the understanding of universe, how the understanding of Earth and the galaxies and different parts of the universe developed. So we are going to study about the evolution of the solar system, the moon, the stars and different particles which exist in the universe, right? For the first lecture, I would like to know the mode of language which is suitable for the masses, whether we want to go for English, Hindi. I think Hindi would not be possible from my end because I'm doing from the English mode, but yes, English can be possible. So if you are watching this throughout, please do let me know how you want to know, so I will adjust my mode of language accordingly. Please let me know in the comment section. I will continue this lecture in majority part will be covered in English, but for some of the understandings we will move for Hindi as well, so that majority can make this thing understand, right? So we will start this lecture now. The first topic is the early theories. So it is under the subtopic of the origin of Earth, and the subtopic is the early theories. So many scientists and philosophers, they put forward this theory regarding the origin of Earth. One of the popular and earliest arguments was put forward by the German philosopher Immanuel Kant, and it was revised by the mathematician Laplace. Okay, and then it was known by the nebular hypothesis. So first theory was given by the Immanuel Kant, and the second one was by Laplace, which known to be nebular hypothesis. This hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun, which was slowly rotating, and later Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result, cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. Right? First, the theory was given. Okay, I'll complete the early theories and then we'll summarize later. So by the understanding, we got to know that there was two scientists, Chamberlain and Moulton. They said that a star approached the sun and then cigar shaped separation occurred
it was extension of material which was separated from the solar surface. So all of the planets, they are formed by the surface layer of the sun, right? This we can conclude currently. Okay, as the passing star moved away, the material separated from the solar surface and revolved around the sun, and it slowly condensed into planets. Sir James Jeans and later Sir Harold Jeffrey supported this argument. Later date arguments considered of a companion. Okay, so this is now, by the time we have third theory, and this is almost fourth theory, that companion of the sun to have been coexisting. There were two friends, sun and a friend, and it was called as the binary theory. In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Whisker in Germany somewhat revised the nebula hypothesis, and they considered that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as a dust. The friction and collision of particles led to formation of disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. Okay, so if we were to summarize the entire early theories, we would say it was very beginning where Immanuel Kant, he proposed the theory about origin of Earth. Second was the German philosopher Immanuel Kant. Okay, so by the time now we are supposed to summarize the early theories, we can say that it was the German philosopher Immanuel Kant who was the first one to say that something about origin of Earth. Then it was Laplace who gave nebula hypothesis, right? If anyone asks that nebular hypothesis was given by whom, it was Laplace. And then what does nebular hypothesis say? It is said that a cloud of material associated with the youthful sun जो slowly rotate कर रहे थे, right? It was a cloud, and then from that cloud a planets got formed, right? And then in 1900s, right, Chamberlain and Moulton, they said that there was a cigar shaped planet, there was a planet, and then there was, because of the attraction of that planet, there was a separation of solar outer layer which got separated, and then by the end, by the differentiation, the planets were formed. And then Jeans and Jeffrey, right? Jeans and Jeffrey said they also supported this. Fourth hypothesis was given by that there was a binary stars, so sun and companion. So that was a fourth one. And after that, after the binary theory, there was another couple of scientists who said that they revised the nebular hypothesis given by whom? The Laplace. They said the sun outer layer was mostly formed by the hydrogen and helium, and they said that
सन वॉज कवर्ड बाय द सोलर नेबुला जो बना हुआ था हीलियम और हाइड्रोजन से, एंड along with that there was dust, and the friction and collision of particles, they led to the disc shaped cloud, and then planets were formed, right? So this was the summary of early theories. So now we'll see what modern scientist has to say. So later on what happened, that the scientific community, they focused on the origin of universe, not just of the earth or planet. They focused on the origin of entire universe, which is the bigger body. So most popular argument regarding the origin of universe is the Big Bang theory. It is also called the expanding universe hypothesis. It was proposed by the Edwin Hubble in the 1920. He provided the evidence. Okay, my bad. It was not proposed by him, but he provided the evidence that the universe is expanding. As the time passes, galaxies, they move further and further apart. You can experiment and find what does the expanding universe means. Okay, so now it is the experiment for the school students जिनके लिए ये बुक लिखी गई है. So we will move forward. We will skip that part, right? Besides the increase in the distance between points on the balloon, okay, अभी भी यही है. Okay. Scientists believe that though space between the galaxy is increasing, observation do not support the expansion of galaxies. This is galaxy 1, this is galaxy 2. The space between them has increased almost 2x, right? But the size of galaxy has remained the same. Okay. So the balloon example जो दिया गया है, that is partially correct, which is not relevant, right? The Big Bang theory considers the following stages in the development of the universe. These are the stages. We will see there are 3 stages. So there is a concept of singularity. So in the very beginning there was a very tiny ball which was existing. All the matter forming the universe existed in one place only. So you can imagine the entire buildings, entire everything, your chair, your benches, your classroom, everything existed in the form of one tiny ball. It had the unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density. So it was very unique kind of a tiny ball, magic ball, right? At the Big Bang, the tiny ball exploded violently. Of course, it has indefinite volume, the temperature and the massive volume, so it was a violent explosion. This led to the huge expansion. Now these are the terms, so the numbers, that is, when did it take place? It took place 13.7 billion years ago. So when we write any answers or something, this is the number that we will quote. The expansion continues even till present date. Abhi bhi the distance is still expanding. As it grew, some energy was converted into the matter that we know Einstein had proved. Energy can convert into the mass can convert into the energy. There was particularly rapid expansion within fraction of a second after the Big Bang. Thereafter, expansion has slowed down. स्टार्टिंग में बहुत जोश था,
but then it slowed down. It is somewhere, somewhat similar to what happens to the UPSC aspirant as well, that in the very beginning we have like massive josh, junoon, but then it slows down. So we'll have to take care of it, that we will not let this happen to us. So thereafter, the expansion has slowed down. Within the first 3 minutes of the Big Bang event, the first atom began to form. We will keep this thing in our mind as well, that it was the first 3 minutes from the Big Bang, first atom began, and then 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin, not Fahrenheit, not Celsius, it was in Kelvin, and gave rise to the atomic matter. First atom began to form in after 3 minutes, right? And then atomic matter, it formed after 3 lakh years. See how it happens? And then universe became to be transparent. Of course, things will start, जैसे जैसे चीज़ें दूर होती रहती है, so we get clarity. So the transparency that we have currently, it is after so long. The expansion of universe means increase in space between the galaxy. If someone asks what is the meaning of expansion of universe, it means increase in the space between the galaxy. An alternative to this was Hoyle's concept of steady state. Okay, so we saw the Big Bang theory. It was given evidence by the Edwin Hubble, but before that there was another theory. It was given by Hoyle, and the name of the theory was steady state. It considered that universe to be roughly the same at any point of time. However, with the greater evidence becoming available about the expanding theory, scientific community at present favors the argument of expanding universe only, right? So we learned how the galaxies were formed, how the universe was formed. Initially we were concerned about how Earth was formed, so we had 4 to 5 different theories, which included the nebula hypothesis, the binary theory, right? But then we were more concerned about the how universe was formed. So we got the answer by the Big Bang theory, which has the evidence by the Edwin Hubble, which says that there was a single atom, there was a single ball, it was a tiny ball, and then 13.7 billion years ago it exploded violently, and then atoms started to form. The first atom, it formed after the 3 minutes. Initially the expansion rate was very high, but slowly it decreased. So the first atomic mass formed after the 3 lakh years from the Big Bang, and the temperature started dropping, the transparency was increasing, right? At the same time, there was another theory by the Hoyle. It was steady state, but that was not enough. It had not that much good evidence, and so because the presence of the good evidence, the current scientific community, they supports the Big Bang theory. This was the summary of the modern theories. Now we will move forward for the star formation. Why it is important? So we will see step by step as we are moving forward. So after the universe, we will move forward the stars, and then planets, and then our solar system, then the moon, and by that we will narrow it down. So
The distribution of matters and the energy was not even in the early universe. Of course, it was like, an explosion. It was not an regulated event which will, show you how things are moving forward. No, it was not. It was a violent thing. It was a violent explosion. It had, you know, indefinite volume and mass. So, because of that fact, nothing was like particular. So, the distribution and energy was not even. This initial density differences gave rise to the differences in the gravitational forces, and it caused the matter to get drawn together. These initial density and differences gave rise to the differences in gravitational forces and caused the matter to get drawn together. Of course, some some of the thing are like bigger in mass and some of the smaller. So by the law of gravitation, the smaller attracts the smaller one gets attracted to the bigger one. So by that, things were getting accumulated with the help of gravitational force, and things started forming. So mass started to get bigger and bigger. These formed the basis of development of the galaxies. A galaxy contains a large number of stars. What is galaxy? It is a group of stars, like huge number of stars. Constellation is also a like group of star, but it's not that much huge. But the galaxy is like a huge number of stars. It's spread over vast distances that are measured in thousands of light years. Light years is what? Is the unit of measurement of the distance in space. Diameters of individual galaxies, they range from 80,000 to 1,50,000 light years. इतना बड़ा 80,000 light years to 1,50,000 light years. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. Eventually, growing nebula develops localized clumps of gases. This clumps continues to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars. Formation of stars is believed to have been taken place some 5 to 6 billion years ago. So what does it say? How the stars were formed? It said that earlier, because of the huge explosion, it was not regulated. So some masses were big, some were small. So the small one started drawing to the bigger one, and slowly accumulation started. And by this accumulation, a huge body of stars, initially huge galaxies were formed, and each galaxy had large number of stars, and it spread over like vast distances, 80,000 to 1,50,000 light years. It was that big. And then the galaxy starts to form. उसमें further accumulation हो रहा है. First accumulation formed the galaxy, and then it further started accumulating, and then it was the accumulation by the gas. It was the gaseous accumulation, it called the nebula, and then nebula further gets accumulated, and it gave rise to the stars. And these stars, they formed after the 5 to 6 billion years ago. So the Big Bang happened before the 13.7 billion years ago, and after 5 to 6 billion years ago, the stars started getting formed. So can you imagine, like, the stars are so new comparatively. The Big Bang, it is
it is not that older comparative to the Big Bang, right? Okay, now we'll see. Okay, these are the information about units. So light year is the measurement of distance. It is unit of the distance. It is not the unit of sound or anything. It is the unit of distance. Light travels at the speed of 3 lakh km per second. Considering this distance, light will travel in 1 year is taken to be the 1 light year. This equals to the 9.461 into 10 raised to 12 kilometers. The mean distance between sun and the earth is 149 blah 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 blah. इतना कोई नहीं पूछने वाला. The term of light year is 8.3 minutes of a year, right? Formation of planets. Okay, so we saw how galaxies were formed, how stars were formed. Now we'll see how planets are formed. We are going quite slowly because the more we slow, the more we will be able to absorb, and the better we absorb, better we will be able to memorize and then write or recollect, right? So in prelims or mains, for both of the stages, it is important that we memorize and recall it. So now we are going to see the formation of stars. Following are considered to be the stages in the development of planets. We are studying planets. The stars are localized lumps of gas within the nebula. Nebula is what? Nebula is a gas. It is a cloud of gases. The gravitational force within the lumps leads to the formation of core to the gas cloud, and a huge rotating disk of cloud and dust develops around the gas core. So what is star? Star is lump of gas within a nebula. Because of the gravitational force, the core है वो कंडेंस होता जाता है, वो मतलब कंसोलिडेट होता जाता है, and then what is left behind outer core, मतलब out of the core is gaseous layers, right? So that is what the concept is, that gas and the dust develops around the gas core, and then what happens in the next stage, that gas clouds, they start getting condensed more and more. The matter around the core, it develops into the small rounded objects. These small rounded objects, by the process of cohesion, they develop into what is called as planetesimals, and then larger body, they start forming by the collision, and the gravitational attraction causes the material to stick together. And then planetesimals, they are large number of smaller bodies. Did you get this? I know थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो रखी है विदाउट कोई पर्पस, ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे. पहले क्या हुआ था कि नेबुला है, नेबुला क्या है, वो भी तो गैस का क्लाउड ही है. तो वो जैसे जैसे वो टाइम जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो रहा है कि कोर कंसोलिडेट हो रहा है. आसपास जो लेयर है, it is of the gas and hydrogen and what is dust, right? And then in the next stage वो और ज़्यादा कंडेंस होगा, ठीक है. and matter around the core develops into small rounded objects. कोर के अराउंड और छोटे छोटे क्लम्प्स बनते जाएंगे. एंड देन कोहेजन मतलब कि चिपकना. तो कोहेजन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द प्लैनेटेसिमल्स. अब यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स जस्ट लाइक प्लैनेटेसिमल्स, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट के कुछ लैंग्वेज होती है, राइट? जैसे एक बहुत वो वाला एग्जांपल है फेमस, सेल हो गया, ठीक है.
बायोलॉजी में सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टिश्यूज़, राइट? एनी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अब तो ठीक है, देर आर मैनी DNA, अब उसके भी लाइक सब पार्टिकल्स हो चुके हैं. बट वो बायोलॉजी में सेल इज़ अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब हम फिज़िक्स में देखेंगे तो फिज़िक्स में सेल क्या होता है, कैथोड एनोड का पूरा जो सिस्टम होता है, विच बैटरी जैसा. सो ऐसे ही सेल के बहुत डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं. जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जाते हैं, वैसे ही एक कोई भी सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है. अगर तुम सेम वर्ड्स यूज़ करते हो एग्ज़ाम में तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि अरे तुमने ये सब्जेक्ट थॉरली पढ़ा है. उसको लगेगा कि यू आर नॉट ए एलियन टू दिस सब्जेक्ट. सो वो एक्स्ट्रा तुम्हें एज मिलेगी. जो कॉमनर्स होंगे और तुम जो दिखोगे थोड़े एक्सपर्ट से. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कोड सच वर्ड्स. तो जैसे इसको हाईलाइट करके रखना हमेशा कि इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेसिमल्स, राइट? प्लैनेटेसिमल्स. ओके, सो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने लगे बिकॉज ऑफ द कोहेशन की वजह से हुआ डेवलप प्लैनेटेसिमल्स. एंड देन लार्जर बॉडीज दे स्टार्ट फॉर्मिंग बाय द कोलिजन. एक दूसरे के साथ धूम धड़ाका होने लगा और बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इट कॉजेज मटीरियल टू स्टिक टुगेदर. चिपकने लगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. तो जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स थे वो और ज़्यादा बड़े होने लगे, ठीक है. एंड लार्ज नंबर में स्मॉलर बॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगी, मोर एंड मोर. इन द फाइनल स्टेज व्हाट हैपन्स दैट दीज large number of small planetesimals, they accrete to form a fewer large bodies in the form of planets. पहले क्या था, large number of small bodies and then small number of large bodies. Simple. ये कन्वर्ट हुए, एक्रीट हुए, मतलब चिपक गए, साथ में मिलके बनाया नंबर फ्यू लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स. तो पता चल गया. अब हाँ, समराइज़ करते हैं कि नेबुला था. नेबुला क्या होता है, गैस के क्लाउड्स, वो लोकलाइज जो थे कंडेंस होते गए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. कोर बन गया एकदम सॉलिड वाला. उसके अराउंड क्या था, वी हैड गैस, हाइड्रोजन और डस्ट उसके अराउंड थे, कोर के अराउंड. देन नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, कंडेंस होता गया और होता गया एंड देन स्मॉल बॉडीज़ बनती गई जो चिपकी, मतलब राउंड अप्राइज की. एंड इट वाज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स. प्लैनेटेसिमल्स इज़ अ स्मॉल बॉडी. और फिर फाइनल स्टेज में बहुत सारी प्लैनेटेसिमल्स बन गई थी, वो एक्रीट हो गई एंड देन इट मेड few number of large planets. So that's how the planets were formed. Now we'll see our solar system. So our solar system consists of 9 planets. Of course this is old thing. Now we have 8 planets. Pluto is not a planet, of course. The 10th planet 2003 UB 313 has also been recently sighted. Of course इसकी नोट बना लो, like keep this thing in your notes, but it's not confirmed. It is not the वो नहीं है, solid नहीं है कि ये हमारा 10th तो नहीं होगा, of course 9th होगा, but अभी उसका भी confirm नहीं हुआ, right? होता तो अभी हमको पता ही होता. रिसेंटली साइटेड, देखा गया है, बाकी कोई उसके टेस्ट नहीं है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई उसको रिकग्निशन मिला है, ऐसा कुछ नहीं है. सो बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, बाकी कोई सवाल नहीं आएगा जब तक कंफर्मिटी नहीं होगी. द नेबुला फ्रॉम विच
our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation some 5 to 5.6 billion years ago. स्टार्स कब फॉर्म हुए बताओ? वी हैड सीन, हाँ देखो ऐसे ही भूलना नहीं है, मैं भी तो भूल जाती हूँ बट नहीं भूलेंगे अब से। टाइनी बॉल बने इधर, फिर स्टार फॉर्मेशन, यस 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स बने। एंड हमारी सोलार सिस्टम कब बनी? कह रहे हैं कि 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago। ठीक है, हौले हौले स्लोली स्लोली सब बन रहा है, ऐसे ही हम भी स्लोली स्लोली पढ़ रहे हैं सो दैट अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। बहुत सारे टॉपिक्स है आई नो, पर ऐसे ही स्लो स्लो जाएंगे सो दैट वी कैन लर्न प्रॉपरली। आई विल शेयर यू द फर्दर प्लान ऑफ स्टडी अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। हमारा टारगेट है 2026 का प्रीलिम्स का अटैम्प्ट ये क्लियर करना है। आई नो 11 months आर लाइक मोर देन सफिशेंट। इसमें हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही प्रिपेयर कर लेंगे, इसी पेस में जाएंगे पर बहुत अच्छे से होगा। ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल की बातें नहीं करते, चलो अभी ये कर लेता। हाँ, our solar system consists of a sun and 9 other planets, 63 moons। ये सारी आउटडेटेड इंफॉर्मेशंस है, हम अपडेट करेंगे, अभी इसी लेक्चर में करेंगे बट लेक्चर के एंड में कर देंगे। सो इसको मार्क कर लो, रेड कलर में करती हूँ सो दैट एट द एंड हमको याद आए कि हमको गूगल करना है। गूगल की जी बना लो बस। एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है और डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होता है, ये सब भी बाय डेफिनेशन हम देख लेंगे। ठीक है, ये सब ऐसे तो यूपीएससी मुझे नहीं लगता पूछता है, बट फिर भी हम स्टेट पीसीएस या फिर और कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गूगल सर्च करके उसकी डेफिनेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सब एंड में करेंगे, गूगल वाला पार्ट एकदम लास्ट में करेंगे बट करेंगे। आउट ऑफ द 9 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब इनर प्लैनेट्स हैं बिकॉज ये सब सॉलिड है और बाकी सारे गैशियस हैं। सो दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड द अदर, हाँ, सो देर इज़ एस्ट्रॉइड बेल्ट जो डिवाइड करते हैं प्लैनेट्स को, इनर और आउटर। इनर में कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसी सीक्वेंस में याद रखो सो दैट एक, हाँ मतलब ये तो बेसिक है कि सन की प्रॉक्सिमिटी से कौन है। एंड उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो वाले प्लैनेट्स हैं दोज आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स। उसमें कौन कौन होते हैं? जो गैस से बनते हैं, जो रिलेटिवली डेंसिटी जिनकी कम है, दीज आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, राइट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर जो जो प्लैनेट्स हैं वो सारे गैस से बने हुए हैं और वो डेंसिटी बड़ी कम है बिकॉज ऑफ गैस है। जैसे टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं वो सॉलिडिफाइड है, उनकी डेंसिटी कम है, वो वैसे साइज़ में भी छोटे छोटे हैं बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है ना। तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो जुपिटर लाइक है? तो पहले तो जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस हो गया और नेपच्यून। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ, ठीक है, एंड दे आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल। ये सारे वो ना डिफरेंसेस है जो तुम टेरेस्ट्रियल वर्सेस जोवियन का लिख सकते हो। एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर हैविंग वेरी थिक एटमॉस्फेयर, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। एंड ऑल द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे सेम पीरियड में बने हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. सो बाय द टर्म इट इज़ सिमिलर, बट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ही खुद लाइक बहुत बड़ा फेज़ है. सो हो सकता है वो हज़ारों लाखों साल का पीरियड है जिसमें वो ग्रेजुअली फॉर्म हुए हैं सारे सारे. इट वॉज नॉट कि आज जो फॉर्म है उसी फॉर्म में वो तब होंगे, बट वो भी इवॉल्व हुए हैं, राइट. सो डिफरेंसेस अगर कोई पूछे तो एक तो यही है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो को बहुत क्लोज विसिनिटी है पेरेंट स्टार विच इज़ द सन इन दिस केस. और उसकी वजह से दे हैव मतलब बहुत सॉलिड पार्टिकल्स है, बिकॉज उनकी गैसेस जल्दी वार्म हुए, वो जल्दी कंडेंस हो गए. वेरेस जोवियन वो दूर थे तो उसकी वजह से उनका कंडेंसेशन उतना बेटर नहीं हुआ, एंड दैट्स वाई वो अभी भी डेंसिटी उनकी कम है. सोलार विंड बहुत इंटेंस थी टेरेस्ट्रियल में क्योंकि वो पास है, तो जो इनिशियल उनका जो एटमॉस्फेयर था और बहुत सारे वैसे भी गैशियस लेयर है वो चले गए उसके. वेरेस जोवियन में वो केस नहीं था. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर बिकॉज लोअर ग्रेविटी है, वो फिर एस्केपिंग गैसेस को नहीं पकड़ पाई, जबकि उधर वो केस नहीं था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सोलर सिस्टम. कब बना था? वो बना था 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है. एंड जो प्लैनेट्स हैं वो प्रॉपर बनते बनते 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हो गए. और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स है, उनका डिफरेंस क्या है. दैट्स ऑल वी सॉ. अब हम देख रहे हैं मून. तो मून क्या है? वो नेचुरल सैटेलाइट है, दैट ऑल वी नो. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं. और ओरिजिन कैसे हुआ था? तो like the origin of earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. In the year of 1838, Sir George Darwin suggested that initially the earth and the moon formed as a single rapidly rotating body. डार्विन ने बोला था कि एक ही बॉडी है. पहले ऐसा नहीं था कि अर्थ की कोई सैटेलाइट है, एक ही बॉडी थी. और फिर वो डम्बल शेप्ड हो गई. ऐसे पहले सेम था एंड देन ऐसे बन गया. सॉरी अगेन, है ना. धीरे धीरे डम्बल शेप्ड बनता गया एंड इवेंचुअली इधर से ब्रेक हो गया. सो द लार्जर पार्ट एंड द स्मॉलर, एंड इट स्टार्टेड रोटेटिंग इसके अराउंड, ठीक है, सेपरेटेड. एंड उसकी वजह से जो अभी eventually broke. It was also suggested that the material forming the moon was separated from what we have at present, the depression occupied by the Pacific Ocean. We know कि बहुत बड़ा वो, मतलब अगर एक साइड से देखेंगे ना तो लाइक वो पूरी एक रिंग है जो एम्प्टी है, जहाँ पे कोई लैंड मास नहीं है, ठीक है. एंड मारियाना ट्रेंच भी उधर है, तो वो कितना ज़्यादा डीप है. सो वहाँ से ही पूरा वो मास खिंच के बना गया है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल टुडे एज अ मून. सो बट अभी प्रेजेंटली साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दिस. दे नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ is an outcome of giant impact, or what is described as the big splat. The body of the size of 1 to 3 times that of the Mars है. इधर ना सन है ना अर्थ है. मार्स इज़ लाइक नॉट जनरली रेफर्ड जब हम ऐसे साइजेस का मेजरमेंट देते हैं, बट इधर है. सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि मार्स की साइज़ का बॉडी कोलाइड हुआ अर्थ से
and shortly after the earth was formed, अर्थ की फॉर्मेशन टाइम पे वो बहुत फ्रेजाइल होती है. ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ है जो नई नई बनी है वो काफ़ी फ्रेजाइल होगी. और मार्स तो ऑलरेडी साइज़ में बड़ा है अर्थ से, और नॉट जस्ट मार्स की साइज़ ही, मार्स से 1 to 3 टाइम्स बड़ी बॉडी अगर अर्थ से कोलाइड हो रही है तो ब्लास्ट होगा बहुत बड़ा. सो इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू अ स्पेस, and this portion blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed the present moon about 4.4 billion years ago, right? So moon का formation बाद में हुआ है अर्थ के. यू कैन से कि बहुत जल्दी ही हो गया था जब वो नेव था काफ़ी, ऐसा प्रेजेंट साइंटिफिक कम्युनिटी का बिलीव है. एंड दे डिनाइड दिस थ्योरी जो डम्बल शेप्ड वाला था, they denied this, right? एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, right? हम आ चुके हैं गैलेक्सी से धीरे धीरे करके अर्थ तक. डू यू नो, अभी और कितना है, ओके बस होने ही वाला है. डू यू नो द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन, एकदम खाली था, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन जो हुआ था तो धीरे धीरे सब कुछ कूल डाउन हो रहा था. विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. प्रेजेंट डे वी नो दैट इट इज़ नॉट द केस. दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ. हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स, प्रोसेसेस which may have caused this change from a rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life, right? वो जैसे बाकी सारे planets है और earth है वैसे ही था, but what was the change जिसकी वजह से आज earth has like you know huge life and water and every other thing which is not present to the other planets, right? क्या हुआ था, अब देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ, राइट. अभी हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के फॉर्म में देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, लाइक वैसे भी अगर देखा जाए तो कोर में नाइफ है, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट एंड देन एटमॉस्फेयर के भी काफ़ी लेयर्स है, राइट. सो इट इज़ नॉट द केस कि सिंगल हैफिजार्ड है, इट इज़ वेरी लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे देखेंगे द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. वैसे स्ट्रेटिफाइड है बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. एक ही जैसा होमोजेनियस कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर लेयर और एक लेयर से दूसरा लेयर डिस्टिंक्ट है. द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी. ऑफ कोर्स वो बाहर की साइड है, राइट. फ्रॉम द सर्फेस टू द डीपर depth. The Earth's interior has different zones, and each of these zones contains material with the different characteristic. Of course उसकी वजह से तो वो different layered है, right? तो अब देखेंगे कि लिथोस्फीयर मतलब क्या, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर जहाँ पे एंड होता है और जहाँ पे व्हाट वी कॉल्ड लैंड और इनफैक्ट इवन ओशंस जहाँ से स्टार्ट होते हैं. सो दिस इज़ एटमॉस्फेयर और फिर इधर से लिथोस्फीयर स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है. तो लिथोस्फीयर कैसे बना, जो हम आज देख रहे हैं जिसमें बहुत सारा मतलब पानी है, इट हैज़ ग्रीनरी, इट हैज़ मैनी मिनरल्स एंड लाइफ, बहुत तरह की लाइफ है, राइट. सो हाउ दिस लिथोस्फीयर वॉज मेड. सो द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोर्डियल स्टेट.
ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज्ड। जैसे जैसे अंदर डेंसिटी बढ़ती गई, द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज्ड। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड started getting separated and depending on their densities टेम्परेचर भी बढ़ता गया और उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर, और इधर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट, ऑन द बेसिस density, right? This allowed the heavier materials like iron to sink towards the center and lighter ones moved towards the surface. With the passage of time it cooled and further solidified. टाइम के साथ सॉलिडिफाइड होता रहा एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज। अर्थ की साइज जो पहले ये बन गई इतनी सी, बट इधर बहुत सारे ऐसे गैसेस और ये सब फैला हुआ था, बट नाउ ये छोटू सा है बट प्रॉपर है, जिसमें कोर में इसके आयरन है, आसपास लाइटर मटेरियल्स हैं, सो बेटर स्ट्रेटिफिकेशन है इसका। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। तो अब हम देखेंगे ये हो गया क्रस्ट, इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, राइट। During the formation of the moon, due to the giant impact that we just mentioned, the earth was further heated up. Of course, कोई भी फ्रिक्शन या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into many layers. डिफ्रेंसीशन की वजह से हुआ, डिफ्रेंसीशन ऑफ उनकी डेंसिटी, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कोई अट्रैक्ट करता है, कोई रिपेल करता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनका डिफ्रेंसीशन होता रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट्स, सरफेस ये है और ये है उसका सेंट्रल पार्ट। वी हैव लेयर्स लाइक क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये आउटर कोर और इनर कोर। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इंक्रीज एंड वी शैल डिस्कस, ओके, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है उसको हम लाइक लेटर ऑन वी विल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, बट हाँ, इधर हम अगर देखें तो डेंसिटी ठीक है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। ऐसे हम डायग्राम छोटे छोटे अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड देन लेटर ऑन जब हम कभी भी आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत इजी रहेगा ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायग्राम्स, तो ऐसे छोटे छोटे जब भी टाइम मिले साइड में ड्रॉ कर लिया करो, सो दैट लास्ट में हमको प्रॉब्लम ना हो। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हमने देखा लिथोस्फीयर कैसे बना, तो लिथोस्फीयर में क्या था कि वो घूम रहा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर हाई था तो डिफ्रेंसीशन भी हाई लेवल पे होता रहा,
और फिर बीच में मून जब निकला तब भी वापस हमें टेम्परेचर हाइक मिल गया। तो उस अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर की वजह से डिफ्रेंसिएशन होता रहा। क्रस्ट पे कम डेंसिटी है, कोर पे ज़्यादा है, और जैसे हैवी मटेरियल्स जैसे आयरन हो गया तो वो कोर की साइड धंसते रहे, एंड हेंस वी गॉट स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ऑफ द अर्थ. Now we'll see atmosphere and hydrosphere. The present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by the nitrogen and oxygen. अभी क्या है, मोस्टली नाइट्रोजन है और उसके बाद सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है. बट यहाँ ज़्यादातर हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे जो है क्लाइमेटोलॉजी का. बट करेंटली हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. First stage is marked by the loss of primordial atmosphere. पहले जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था which was obviously of hydrogen and helium, ये फर्स्ट स्टेज है. ठीक है. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि हॉट इंटीरियर की वजह से इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ, तो ये सेकेंड स्टेज हुआ. फाइनली कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ये जो हम क्या करते हैं कि एवरी टॉपिक के एंड में जो मैं समराइज़ कराती हूँ ये लोग पहले ही समरी दे चुके हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया कि पहले आइडिया दे दो कि आगे क्या डिस्कस होने वाला है. राइट. तो यस, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर. सेकेंड में इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एंड देन बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ. विल सी हाउ इट हैपन्स. द अर्ली एटमॉस्फेयर विद द हाइड्रोजन एंड हीलियम वॉज सपोज टू हैव बिन stripped off with the because of the solar winds. This happened not only in the case of Earth but also in all the terrestrial planets. ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ का घाटा करके गए वो सोलर विंड्स, बहुत सारे लाइक ऑल द प्लैनेट्स का हुआ है. सो साथ साथ अर्थ का भी हुआ, which were supposed to have lost in the primordial atmosphere through the impact of the, ठीक है, सोलर विंड्स की वजह से हो रहा है. ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ पहले टेम्परेचर इन जनरल पूरे यूनिवर्स का ज़्यादा था. सिंगुलैरिटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक अनइमेजिनेबल टेम्परेचर रहा है. उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होता रहा. तो जब सेम प्रोसेस में अर्थ भी कूल डाउन हो रही थी, द गैस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ. बिकॉज वी नो नाउ कि अब सॉलिड क्यों है अर्थ का इंटीरियर, क्योंकि वहाँ पे आयरन जमा हो चुका है विच इज़ अ सॉलिड मटेरियल. उसका कंडेंसेशन होता रहा तो अर्थ का इंटीरियर बहुत सॉलिड हो चुका है. एंड उसकी वजह से इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हुआ है. द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेंट वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ammonia and very little of free oxygen. right. देखो इधर very little oxygen is very important. वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था, पानी ही पानी, पर कहाँ, हवा में. नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था, बट फ्री. यस, अभी इधर क्या मार्क करेंगे, 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है MCQ के पर्सपेक्टिव से. मीथेन, अमोनिया और वेरी फ्री लिटिल ऑक्सीजन. हमको कई बार बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, थोड़ा सा था. मीथेन, अमोनिया जो हमको जनरली याद नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी अमोनिया तो जनरली ऐसा है कि हम नाइट्रोजन देखें बट हमें ऐसे याद नहीं आएगा अमोनिया. बट अमोनिया इज़ ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन. राइट. तो अमोनिया एक्सप्लिसिटली ये भी प्रेजेंट था, और मीथेन जो कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो वो भी अलग से प्रेजेंट था. सो दैट्स हाउ वी विल रिमेंबर. इधर अब मेंशन दैट
हीलियम और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट नहीं थे इस टाइम पे मेजरली। तो हम मेजर गैसेस का जब नाम मेंशन करेंगे तो वी विल नॉट मेंशन दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रीलिम्स में पूछे कि हाइड्रोजन और हीलियम्स प्रेजेंट थे या नहीं थे तो हम एकदम ही डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, राइट। बट जब हम मेंस के लिए लिख रहे हैं कि कौन कौन से मेजर थे तब हम इनका नाम नहीं लिखेंगे, राइट। द प्रोसेस थ्रू विच गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। इंटीरियर में से गैस निकल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डीगैसिंग। कॉन्टीन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे, उसकी वजह से वाटर वेपर और गैसेस अंदर से निकल ले जा रहे थे एंड पोर हो रहे थे एटमॉस्फेयर में। जब भी ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे कर दो और ये अर्थ है और ये ऐसे बना दो, थोड़ा प्रॉपर सा लगे, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन वे विल थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड एंड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड, है ना। बहुत ज़्यादा अब जब ठंड हो रही थी तो और ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो चुके होंगे तब तक, और फिर जैसे ठंडा होता गया तो हवा में से वो धीरे धीरे नीचे गिरते रहे, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व्ड इन द रेन वाटर and the temperature further decreased, causing more condensation and more rains. The rainwater falling into the surface got collected into the depressions to give rise to the oceans. कैसे बने oceans? तो पहले हवा में सारी वाटर वेपर थी, वो धीरे धीरे कंडेंस होके डिप्रेशन में कलेक्ट होती रही एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर वेपर के साथ मिक्स होता रहा तो वो भी धीरे धीरे नीचे आता गया, ठीक है। द अर्थ्स ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। दिस टेल्स दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स एंड समटाइम्स अराउंड 3800 million years ago. Life began to evolve, however, around 2500 to 3000 million years ago before the present. देखो इतना ज़्यादा ना डेटा याद इतना ज़्यादा नहीं रखना, ऊपर ऊपर से रख लोगे चलेगा। जैसे ये हमें हो गया, ये थोड़ा इजी है। 500 मिलियन ईयर्स उसके फॉर्मेशन के तुरंत बाद ओशंस बन गए थे, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि ये याद रख लो 3800 मिलियन ईयर्स तो वो बन गए सारे, और लाइफ कब बिगन हुई? अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। मोटा मोटा याद रख लेंगे। और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व्ड, द लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले सब पानी में ही था एंड ओशंस बिगेन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गे थी, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होने लगी। आई डोंट नो इधर आगे मेंशन है कि नहीं, बट वी नो, तो है ना। और फिर ओशन में बहुत सारा ऑक्सीजन होता रहा और फिर वो ओशन मतलब कि पानी में ऑक्सीजन सेचुरेट होके
बहुत सारा हो गया और फिर वो रिलीज़ हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ओशन, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ कि द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में it is clear that initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. Of course बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction. ये था chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. Today we study DNA, RNA. DNA, RNA क्या है? It is ribonucleic acid. तो वो एक एटम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता गया जिसकी वजह से हम इवॉल्व हुए हैं. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्स्ट जनरेट हुए और फिर असेंबल हुए जिसकी वजह से DNA, फिर फर्दर न्यूक्लियोल्स, फिर सेल्स बने, पूरी एल्गी बनी, एल्गी कॉलोनीज बनती गई, राइट. The record of life that existed on the planet in different period is found in the rocks in the form of fossils that we know. The microscopic structure closely related to the present form of blue algae that have been found in the geological formation that are much older than these were some 3000 million years ago. It can be assumed that the life began to evolve sometimes around 3008 million years ago. The summary of evolution of life from unicellular bacteria to the modern man is given in the geographical time scale on the page 18, right? It started with the complex mechanism of atoms and molecules. फिर वो धीरे धीरे ब्लू एल्गे बने एंड देन हमारा एवोल्यूशन हुआ. विल सी हाउ. ठीक है, तो दीज आर लाइक स्मॉल यूनिट, मतलब दिस इज द बिग एंड ये छोटे यूनिट्स. एंड व्हाट हैपेंड, द इयॉन्स, एरा, पीरियड, एपॉक एंड एजेस या फिर ईयर्स, राइट. तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि मेजर इवेंट्स कब हुए, राइट. तो पहले तो बिग बैंग हुआ, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, फिर ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ सन बेसिकली, राइट. तो ये हुआ था 13.7 मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो सॉरी. और ये हुआ था 5000 मिलियन, मतलब जो हम कहते हैं 5000 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. और उसके बाद अब मेजर इवेंट्स देखेंगे. ये हमको देखना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक और उन सब के अराउंड, ठीक है. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट ये हम उस टाइम पे देखेंगे. बट ये इम्पॉर्टेंट है, यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया कब फॉर्म हुआ. तो ये हमने ऑलमोस्ट देखा कि 3800 मिलियन ईयर्स अगो. उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे हुआ, तो थोड़ा सा उसके बाद में हुआ, राइट. तो ये आज से कितना पहले, तो ब्लू ग्रीन एल्गे कब बना, तो ऑलमोस्ट 2500 मिलियन ईयर्स अगो बना, ठीक है. और फिर हम अगर देखेंगे तो इन्वर्टिब्रेट बने, फिर फिश बनी. फर्स्ट फिश कब बनी, 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है. फर्स्ट वर्टिब्रेट कब बना, 360. लैंड पे लाइफ कब आई, 438. डायनासोर का एक्सटेंशन कब हुआ,
144 फिर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स कब थे, तो 5 मिलियन ईयर्स अगो, ये एंथ्रोपोलॉजी में आएगा ऑफ कोर्स। और फिर मॉडर्न मैन तो है ही अभी। तो बेसिक देखना है और कौन से वो पीरियड में था उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये याद रखना है हमें। एज ऑफ डायनासोर्स दैट वी नो की जुरासिक पार्क है, ठीक है, मतलब जुरासिक पीरियड है, उसके ऊपर पार्क बना ऑफ कोर्स। सो दिस वाज आवर इंटायर यूनिट। बहुत ज़्यादा डीपली हमने पढ़ा है। नाउ विल सी कि रेलेवेंट यूपीएससी क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं इस यूनिट से, और पोटेंशियल प्रैक्टिस पेपर्स मेंस के भी क्वेश्चंस हैं तो देख लेंगे। तो ऐसे ही सेम थ्योरी रहेगी हमारी हर एक यूनिट के साथ, राइट। ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन अबाउट द यूनिट वी विल सी द PYQs, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में, सो दैट हमारा PYQs का रिविजन भी अलॉन्ग विद एवरी चैप्टर हो जाए। वी विल इंक्लूड प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के क्वेश्चंस और उनका डिस्कशन, राइट। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल सी, द which one of the following layers of the earth is responsible for the generation of earth's magnetic field? Now we know कि हमने exactly कुछ नहीं पढ़ा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बट रिमेंबर वी हैड मेंशन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन का मेंशन हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ है अर्थ में, बहुत सारी लेयर्स हुई है। आयरन बीइंग द हैवी मटेरियल वो अर्थ के कोर में था, बट नाउ हमने ये नहीं पढ़ा कि इनर कोर की आउटर कोर, बट ये आगे वाली चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इधर क्यों मेंशन किया है, टू डेवलप दैट एटीट्यूड कि कैसे कनेक्ट करें डॉट्स को, राइट। ऑफ कोर्स इसका आंसर अभी हम नहीं दे सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, बट वी विल डिस्कवर द आंसर इन अपकमिंग लेक्चर्स। वहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चंस हम डिस्कवर करेंगे, बट by the knowledge of differentiation and the formation of lithosphere we know कि वो कोर ही होगा, राइट। मैग्नेटिज्म रिलेटेड है प्रेजेंस ऑफ आयरन के, और आयरन इज प्रेजेंट इन द कोर। इनर कोर है कि आउटर कोर, दैट वी कांट से ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर, बट फॉर द टाइम बीइंग we are disclosing the answer which is the outer core here in this case। बट अगर आपको इतना भी आप पढ़े हैं तो हम 50-50 पे आ जाएंगे प्रीलिम्स में कि दोनों में से क्या हो सकता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय व्हाट। स्टार्ट रिकॉलिंग व्हाट वी हैव स्टडीड। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय व्हाट? Photochemical reactions in the stratosphere? No, we haven't had actually studied much about the stratosphere. So इसका तो mention या फिर कोई formation में कोई role नहीं पड़ा, of course नहीं होगा। Volcanic eruption and degassing? Yes, we have discussed, and by the formation of atmosphere और life in the earth हमने देखा था कि हाँ volcanic eruption की वजह से वाटर वेपर बाहर आए और अदर गैसेस भी अलॉन्ग विद आए। डी गैसिंग भी हुआ, जो कोर में गैसेस थे वो बाहर आउटपोर होने लगे। हमने उस पर एक डायग्राम भी बनाया है, राइट, ये वाला, नो नॉट दिस वन, यस दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डी गैसिंग। तो हाँ, इसकी वजह से देयर वाज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यस, दिस कैन वी कैन से इवैपोरेशन ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर की वजह से एटमॉस्फेयर बना ये नहीं कह सकते, एवोल्यूशन में उसका पार्ट था, बट इट वाज नॉट द सोल प्लेयर, राइट। आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस? ऑफ कोर्स नॉट, ह्यूमंस तो बहुत बाद में आए, राइट। सो द राइट आंसर इज़ द वोल्केनिक इरप्शन एंड डीगैसिंग। इवैपोरेशन ऑफ ओशन वाटर कैन बी अ प्लेयर,
बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग, राइट। सो हमें दोनों सही में से ज़्यादा सही को सिलेक्ट करना होता है वाइल जब हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि गैशियस क्लाउड था और फिर क्लाउड उसमें से कैसे प्लैनेट बने, बट कैसे? बाय अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। फ्रॉम द कंडेंस्ड गैस एंड डस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, yes we can give it a plus point as a result of collision between two meteors, नहीं, बिल्कुल नहीं। from the remnant of earlier galaxies, never, ये तो ऐसा बिल्कुल लिंक नहीं है, राइट। तो आंसर इज बी, from the condensed gas and the dust revolving around the sun, धीरे धीरे वो कंडेंस होते रहे और फिर स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स बने और फिर बने प्लैनेट्स। Which of the following gas was not present when the early atmosphere of the earth? ये हमने देखा कि not present में जब हम पढ़ रहे थे water vapor was there, of course मीथेन अमोनिया थे, but there was a mention कि very little था, तो comparatively A is the answer कि oxygen was present but with a very little amount of oxygen was present. So these were the questions that were asked by the UPSC in the previous years. अब देखते हैं मेंस का क्वेश्चन। डिस्कस द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ विथ रेफरेंस टू द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कैसे बना था? स्टार्ट रिकॉलिंग व्हाट वी हैव स्टडी, राइट। तो पहले तो सबसे हम याद करेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस दिया किसने था, ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? इमैनुअल कांत। उसके बाद लाप्लास ने रिवाइज किया था। फिर हाइपोथेसिस कहता क्या है, ठीक है। एंड रिमेंबर कि हमें ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखो। टॉपिक क्या है कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और उसके साथ नेबुलर हाइपोथेसिस को रेफ़र करना है, इसको ही सिर्फ डिस्कस नहीं करना। समटाइम्स वी फॉरगेट कि नेबुलर हाइपोथेसिस नहीं पूछा, हमने पढ़ा है तो वी गेट वेरी एक्साइटेड, बट द मेन थीम इज़ दिस, ओरिजिन और एवोल्यूशन को डिस्कस करो। तो ब्रीफली इसको बताना है लिंक करके, बट डिस्कस ये करना है, ठीक है। तो नाउ हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि किसने स्टार्ट किया था, किसने रिवाइज किया, फिर उसमें था क्या। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था कि देयर वाज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस जो कंडेंस होते रहे, उससे फिर इट स्टार्टेड फॉर्मिंग कंडेंस्ड मास। और वो था किसके लिए? पहले जो ये ओल्ड थ्योरीज में से था ना, तो दे वर मोर कंसर्न्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड मेजर सोलर सिस्टम। उनको गैलेक्सीज से लेना देना नहीं था, ठीक है। वो उस टाइम पे उतना लिमिटेड ही सोच रहे थे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस वाज आल्सो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम। तो वो उसका पर्पस हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार तुम्हारा अर्थ बन गया, फिर तुम डिस्कस करोगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है कि उसके बाद लिथोस्फीयर का ब्रीफ, फिर एटमॉस्फेयर कैसे बना तुम्हारा, फिर लाइफ कैसे बिगिन हुई, ठीक है। तो और बीच में जो हमने टाइमलाइन मेंशन किया था, वो टाइमलाइन आ जाएगी कि लाइफ कब इवॉल्व हुआ था, उसमें कहाँ से हुआ था। तो ब्लू एल्गे का मेंशन था। दैट्स हाउ वी विल राइट द आंसर। वी विल पॉज फॉर 10 मिनट्स, जो 150 वर्ड्स के होते हैं उसके लिए। ट्राई टू अटेम्प्ट राइट एन आंसर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी साइड से पॉज करो वीडियो को, राइट योर आंसर एंड देन वी विल डिस्कस, राइट। गिव 10 मिनट्स, राइट योर आंसर्स। And now when you are unpausing the video, you
we'll see how we could have wrote the answer, right? So here we will begin by the nebular hypothesis. तो इसका प्रपोज किसने किया था? कांत ने किया था. रीडिफाइन किसने किया था? लैपलेस ने किया था. ठीक है, उस टाइम पे ये मोस्ट एक्सेप्टेड था. तो क्या बताता था? पर्पस लिखेंगे. ठीक है, कि प्रोपाउंडर कौन थे, ये होगा उसका पर्पस, क्यों था. सो इंट्रोडक्शन में दिस मैटर्स अ लॉट. इंट्रोडक्शन और एंड मैटर्स अ लॉट. बाकी का स्टफिंग सबका ऑलमोस्ट सेम होता है. अकॉर्डिंग टू, हाँ, हाइपोथेसिस कहती क्या है. तो अब हम देखेंगे कि लार्ज रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस थे, फिर वो कंडेंस हो गए. ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी. कौन सा फोर्स था? क्यों कंडेंस हुए? तो ग्रेविटी की वजह से. और उसके बाद प्रोटोसन लाइक स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद एक्रीटेशन हुआ और प्लांटेसिमल्स बने. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप ऐसे आंसर्स लिखो, ट्राई टू मेंशन सच वर्ड्स. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरनल डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर लेयर्स बनते गए. ठीक है, तो इधर वाले पार्ट में व्हाट वी कैन डू, हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, वी विल से कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ है और हम दिखाएंगे डिफरेंशिएशन, कोर, मेंटल, क्रस्ट, और ये हो गया कोर. लेयर्स ऑफ अर्थ. ठीक है, ऐसे दिखाएंगे. और फिर कैसे और ज़्यादा लाइफ के लिए कैसे सूटेबल बनता गया, वो हम बताएंगे कि पहले एटमॉस्फेयर कैसा था, फिर कैसे बनता गया. ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और नेबुलर हाइपोथेसिस, ये एक पार्ट है इवोल्यूशन वाला. ये है नेबुलर हाइपोथेसिस. इसी वजह से मैं पूरा नहीं लिखती, मैं टाइप करके लिखी हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है. यस, सो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर दैट वी विल गिव. ये PYQ में से है. इफ़ यू वांट, आई विल शेयर यू मोर practice answers, but now what we will do, we will make note पूरे चैप्टर की. yes, that is important. और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही हम बनाएंगे, बिकॉज एक बार हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं. देन ओनली वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कौन कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है UPSC जो आंसर फ्रेम करते हैं उनके POV से, राइट. तो आई विल मेक माई नोट्स on the basis of what I've drawn and what I've highlighted. I'll share you, and if you want you can refer that, or else you can make your own notes, and we will continue the series. और हम चैप्टर बाय चैप्टर ही पढ़ेंगे. We are done with this. कल हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ. उसमें आपको इनर कोर, आउटर कोर, ये वो वाला क्वेश्चंस था, वो भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. NCERT इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द UPSC प्रिपरेशन. हम ज़रूरत होगी वहाँ पे GC लियोंग भी रेफ़र करेंगे, बट आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा हम NCERT पे ही ध्यान दें. थैंक यू.